reaction. Okay, in oxidation reaction, see here, we talk provide oxygen. Okay, all of you are getting my voice now, students? Yes. In oxidation reaction, we are out to provide the oxygen atom. Okay, in alcohol, in case of alcohol, see here, you will see only single hydrogen atom. Okay, let us draw the structure. When we will draw the structure, we are getting here C bonding with C, 2 carbon atoms along with alcoholic bonding. Okay, अब इसमें क्या होता है, when we will provide extra oxygen, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का जो बेस्ट वे है ये है कि एज अ कैटलिस्ट हम उसमें यूज करें एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो वी हैव यूज्ड हियर, सी इट केयरफुली, वी हैव यूज्ड हियर alkaline KMnO4, alkaline KMnO4, potassium permanganate. KMnO4 stands for potassium permanganate. Okay, so potassium permanganate will provide the extra oxygen. Potassium permanganate will provide the extra oxygen to the alcoholic group, and all of you can observe here that it was initially a single oxygen atom, and after that we are seeing here double oxygen atoms are present. It means alcoholic group is being converted into carboxylic group. Okay, C double bond O, single bond OH. We are seeing here 2 different oxygen atoms. All of you are getting? Yes, we will discuss about catalyst. This much all of you are getting now. Okay, whenever any alcoholic group is being converted into carboxylic group, then the reaction is said to be oxidation reaction. Yes, in case of oxidation reaction, we talk about providing an oxygen atom, either 1 or 2 or 3, लेकिन ऑक्सीजन एटम का नंबर उसमें इंक्रीज करना है. Clearly कि an alcoholic group is being converted into carboxylic group. This much reaction is known as oxidation reaction. All of you are getting it? And now we will discuss, yes, about catalyst. Catalyst, we have seen it before also. There are those substances that do not participate in the reaction, but still they can affect the reaction. Okay, listen me carefully. These are those substances that do not participate in reaction, but they can affect the reaction. They can affect the rate of reaction. Okay, ये कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते. Here in the reaction KMnO4 is present, alkaline KMnO4. क्या हमें यहां पे कार्बन की बॉन्डिंग थी और यहां भी कार्बन की बॉन्डिंग है, हमें कहीं पे भी पोटेशियम या मैंगनीज ऑब्जर्व हो रहा है? We are getting potassium or manganese? No, we are not getting potassium or manganese. Okay, because potassium permanganate is not involved in the reaction. Potassium permanganate reaction में इन्वॉल्व नहीं हो रहा. पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर रहा है? रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है. और रिएक्शन को अफेक्ट वो कैसे कर रहा है? बाय प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम. ओके, एक अल्कोहलिक ग्रुप को वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर रहा है. ओके, व्हाट वुड बी द नेम? Initially we had taken, see here, this was ethanol. In last we will write all because alcoholic group is there. Ethanol. Okay, and it is being converted into ethanoic acid. ETHANOIC, ethanoic acid. Okay, so we can say that oxidation reaction is a type of reaction that converts a particular alcoholic element into carboxylic group, into its carboxylic acid. Understood? इथेनॉल था तो वो इथेनोइक एसिड में चेंज हुआ. अगर वो प्रोपेनॉल होता तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनॉल. ब्यूटेनॉल होता तो दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेनोइक एसिड. वो जितने कार्बन एटम्स का चेन रहेगा दैट विल बी द सेम इन द रिएक्टेंट
एंड इन द प्रोडक्ट ऑल्सो, जितने रिएक्टेंट में होंगे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वी कैन सी इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। दो कार्बन एटम हमारे रिएक्टेंट में थे, तो वी ऑल हैव सीन हियर दैट टू कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑल्सो। बट what is the change here? The change is that the alcoholic group is being converted into carboxylic acid. Is there any confusion? Is there any confusion? Yes? Yes, very good. We all have studied it in chapter first that catalysts are those substances that do not take participate in the reaction. वो खुद से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन रिएक्शन को फास्टर रेट में कराने में सक्षम होते हैं. दे आर एबल टू अफेक्ट द रिएक्शन एट अ वेरी ग्रेटर रेट. वो रिएक्शन को स्लो करना भी जानते हैं, रिएक्शन को फास्ट करना भी जानते हैं. दोज आर कैटलिस्ट. ओके, बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. अंडरस्टूड? कैन वी रेज इट? कैन वी क्लियर द स्क्रीन? ओके, ओके. Now the next one we will see addition reaction. And one important thing what I would like to say, that you have to learn the names of alkyl and acidified K2Cr2O7. Okay, K2Cr2O7 stands for potassium dichromate. Potassium dichromate. क्रोमियम में Cr में 2 लगा हुआ है वहां पे. ओके, दैट मीन्स डाइक्रोम. और ऑक्सीजन के नंबर जहां पे आते हैं वहां पे नेम के लास्ट में 8 या 8 होता है, तो इट बिकम्स पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके, तो दोनों में से किसी का भी यूज कर लेंगे. बोथ द केमिकल कंपाउंड्स कंटेन्स ऑक्सीजन इन इट, चाहे वो अल्कलाइन KMnO4 हो या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो. दोनों के दोनों खुद में ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, और जब ऑक्सीजन कंटेन करते हैं तो दे नो हाउ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन देना भी जानते हैं. ओके, तो दे विल प्रोवाइड इट. इसे हम बोलेंगे यहां पे दैट वी आर यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, वी आर यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है अल्कोहल को. वी आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू अल्कोहल, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हमने क्या बना दिया? इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? यस. So here we have discussed about the oxidizing agent. Now listen it carefully. In the next reaction, addition reaction, we will use reducing agent. We will use reducing agent. Listen carefully. Reducing agent we will use here. Okay? This much. अब इसमें क्या होता है? Listen it carefully. We have studied in chapter first that the addition of oxygen is oxidation reaction, and addition of hydrogen is reduction reaction. अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होता है तो दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. हमने ये पहले देख रखा था. हाइड्रोजन ऐड हुआ मतलब वो चीज रिड्यूस कर गई, और ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वो चीज और ऑक्सीडाइज हो गई. यस, बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे लेकर आना है. वी हैव टू यूज दैट मच कॉन्सेप्ट हियर. और हमें कैसे यूज करना है उसे? सी हियर, कार्बन कार्बन, वी आर सीइंग 2 कार्बन एटम्स. ओके, दीज 2 कार्बन एटम्स आर बीइंग बॉन्डेड टुगेदर इन अ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड में आपस में बॉन्डेड हैं. ये बात हम क्लियर जानते हैं दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स आर not so much held by any attractive forces. इन्हें अगर ब्रेक करना हो तो हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, इन कंपैरिजन टू द सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो होते हैं, दोज आर मच स्ट्रॉन्गर, दोज आर हेल्ड बाय मच स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. तो हमें क्या फोकस करना है? दैट वी हैव टू कन्वर्ट अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम into a single bonded carbon atom, or in simpler words we can say that we have to convert alkene. We have to convert alkene. Ene stands for double bond. Alkene to alkane. Okay, whenever we convert any alkene to alkane,
alkane. Okay, any double bonded carbon atoms chain is converted into single bonded, or any unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon. उसको हम और भी ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं, उसके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लंबे टाइम तक स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम? देन वी विल अप्लाई एडिशन रिएक्शन टू दैट प्लेस. ऐसे कंडीशन में हम क्या अप्लाई करते हैं? एडिशन रिएक्शन. व्हेन टू कार्बन एटम्स okay are bonded together with a double bond, okay, then nickel or palladium, listen it carefully, either we use nickel or we use palladium, pd, understood? इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट को यूज कर लेना है. बोथ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं. ओके, अब ये क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का काम करेंगे. इससे पहले हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी. लिसन इट केयरफुली. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क था टू प्रोवाइड ऑक्सीजन. यस, एलआईसी का एजेंट आता है हमारे पास तो हमें एलआईसी पॉलिसीज के बारे में बताता है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देने का काम करेगा. यस, जो जिस चीज का एजेंट है दैट विल प्रोवाइड दैट मच थिंग. ये रिड्यूसिंग एजेंट है निकेल और पैलेडियम, तो दिस विल हेल्प टू प्रोवाइड हाइड्रोजन. Okay, and here one hydrogen atom, one hydrogen atom. Okay, अब कार्बन की बॉन्डिंग पूरी हो गई. This much carbon atom is bonded with, two bonding is here, third one and fourth one is here. Okay, this much carbon also, one bonding here, second bonding here, two bondings are here. दोनों कार्बन के 4 satisfied हैं. Yes, now what we have to do कि हमें ये बीच की डबल बॉन्डिंग जो है, एक बॉन्डिंग ब्रेक करनी है. एंड वी हैव टू मेक इट एज सी सिंगल बॉन्ड सी, एंड देन आफ्टर 1 2 3 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 हाइड्रोजन एटम. अंडरस्टूड? तो व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड हियर, पहले 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन एटम थे. नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? 1 2 3 4 5 6 6 hydrogen atoms are present. It means plus H2 hydrogen atom is being combined. Okay, and this double bond, see here, this double bonded carbon atom is being converted into single bonded carbon atom. All of you are getting it? We have converted an unsaturated hydrocarbon, a double bond carbon atom, into saturated hydrocarbon. Okay, with the help of reducing agent, which are nickel or palladium. We can take nickel as a catalyst or palladium as a catalyst. क्योंकि इन कैटलिस्ट को रिएक्शन में टेक पार्टिसिपेट नहीं करना. वी आर नोइंग इट केयरफुली. यस, ओनली दीज आर यूज्ड टू अफेक्ट द रिएक्शन. अगर हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करना है तो निकेल और पैलेडियम को अगर हम यूज करते हैं तो दे विल फास्टन द रिएक्शन, दे विल मेक इट इजियर फॉर द हाइड्रोजन एटम टू कंबाइन. ओके, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है. अंडरस्टूड? अब तुमको ले चलते हैं थोड़ा सा पीछे, सी ऑन द बैक साइड, जो हमने पिछले कुछ क्लासेस में रिवाइज किया है. that the formula for alkane is CnH2n plus 2. Okay, and the formula for alkene is CnH2n, and the formula for alkyne is CnH2n minus 2. So when we are going to convert a triple bonded carbon atom chain into double bonded carbon atom chain, okay, and then double bonded carbon atom chain into single bonded carbon atom chain, okay, then we are doing the addition reaction. We are increasing the amount of hydrogen. Listen me carefully. We are increasing the amount of hydrogen atom. Understood or not? I am showing you the proof. See here, यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम माइनस में थे, वो 2 हाइड्रोजन एटम माइनस वाले ऐड हो गए, -2 गायब हो गए यहां से, देखो. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप
two more extra hydrogen atoms have been joined. From minus 2, see the journey of hydrogen atom. From minus 2 it travels to become 0, and from 0 it becomes to plus 2. तो हाइड्रोजन एटम्स हमने ऐड किया हर एक स्टेप पे, दो हाइड्रोजन एटम्स हमने ऐड किए, तो ट्रिपल बॉन्ड से वी ट्रेवल टू डबल बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन एटम फिर ऐड किए तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड. ऑल ऑफ यूर सीइंग इट हियर ना? ये चीज यहां पे क्लियर है सबको? यस. तो हमने जब टू हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करना है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में करने की कैपेसिटी रखते हैं और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करने की कैपेसिटी रखते हैं. इट मींस वी आर कन्वर्टिंग एन अनसैचुरेटेड, सी हियर, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके? When we are discussing about addition reaction, it means we are converting an unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon having the formula CnH2n plus 2. Yes? If there is any confusion regarding oxidation reaction and addition reaction, you can ask. Okay? I am giving you a single minute. If there is any problem, think twice and ask it quickly. Yes. We have discussed about oxidizing agent in oxidation reaction here. Okay. We have discussed about reducing agent here in addition reaction. हमारा पर्पस क्या था? पर्पस ये था that we have to provide oxygen in case of oxidation reaction. तो हमने उसमें alkaline KMnO4 और acidified K2Cr2O7 का यूज किया क्योंकि उन लोगों के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट था. They will provide oxygen very quickly. Okay? And in case of addition reaction, हमने हाइड्रोजन को तो ऐड किया लेकिन उसके साथ साथ निकल, ओके, Ni और वी कैन यूज पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, ताकि जो हाइड्रोजन एटम हमने ऐड कर रखा है, वी हैव एडेड अ डाई एटॉमिक हाइड्रोजन H2. ओके, तो हमने जो ऐड कर रखा है दैट विल कंबाइन वेरी कंफर्टेबली. हमने कैटलिस्ट का यूज इसलिए करते हैं, ओके, सो दैट एनीथिंग विल कंबाइन टू द रिएक्टेंट वेरी मच रैपिडली. ओके, वी हैव नॉट टू वेट फॉर एनी एक्स्ट्रा टाइम फॉर द रिएक्शन टू बी हैपेंड. रिएक्शन को होता हुआ देखने के लिए हमें लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ऑफ दिस कैटलिस्ट. अंडरस्टूड? यस. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कैटलिस्ट आर नॉट ऑलवेज यूज्ड इन 90% रिएक्शन. कैटलिस्ट आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट नॉट ऑलवेज. It is not for always, because sometimes catalysts are used to slower down the reaction. Okay, so these things are not going to matter at this level, at class 10th level, but when you will go to the higher classes, when you will approach to class 11th and class 12th organic chemistry, okay, physical chemistry, chemical kinetics, in that cases you have to study about these catalysts. Okay, अभी के लिए इतना है काफी. यस. ओके, ओके, देन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम चेन इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम चेन. मतलब कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. अंडरस्टूड? फॉर दिस पर्पज वी हैव यूज्ड एडिशन रिएक्शन. Clear? Yes. Now see the third one. The third one is substitution reaction. What is the meaning of substitution? You have studied in mathematics also in third chapter linear equation in two variable. वहां हम क्या करते थे? We use the value of x from equation first at the place of x in the second equation. Okay, जब किसी एक particular
चीज की जगह पे कोई दूसरा चीज यूज किया जाता है. ओके, इफ वी आर यूजिंग एनी वैल्यू at any particular place, okay, it means we are substituting it, we are fulfilling any other place, okay, that is substitute. तो अब यहां पे substitution reaction डिस्कस करेंगे. तो we will see here a very simple hydrocarbon is CH4, है ना. What about the structure of methane? See the structure of methane, 4 carbon atoms. We all know that the carbon is tetravalent. It means a carbon has to combine with 4 different atoms. Yes, tetravalence means the valency of 4. यहां पे अब HH ऐड करते जा रहे हैं. Okay, this is the structure of methane. Okay, now what we have to see here कि जब हम इसमें क्लोरीन एटम ऐड करते हैं, if we are adding chlorine atom Cl2, chlorine is also diatomic gas. So when we add chlorine atom to this, okay, in the presence of sunlight, एक बात हमेशा याद रखना, जो हमने मेटल्स और नॉन मेटल में स्टडी किया था चैप्टर नंबर 3 में, कि मेटल्स के केस में जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं और नॉन मेटल्स के केस में जो 17th ग्रुप में आते हैं, these two are highly reactive. Okay, these two categories of metals and non-metals are highly reactive. अब इस केस में अगर हम क्लोरीन एटम प्रोवाइड करना चाहते हैं, अंडरस्टूड, तो कैसे ये प्लेस फिलअप करेगा? वी हैव टू यूज हियर सनलाइट. आई एम गोइंग टू डिलीट इट. ओके, और इसका पूरा फॉर्मेशन समझाने जा रहे हैं. सी हियर, कार्बन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम is combined here. Okay, carbon atom and 4 hydrogen atoms are combined here, plus chlorine is being added here. Okay, now in the presence of sunlight we have to carry forward the reaction. Now see here very carefully, we are having 4 hydrogen atom here. Okay, we are having 4 hydrogen atom here with single carbon atom. Okay, अब क्या होगा यहां पे? क्लोरीन एटम, वी आर सीइंग द क्लोरीन एटम हियर. सी हियर, क्लोरीन एटम में से एक क्लोरीन का एटम, डायटोमिक इट इज हियर, 2 क्लोरीन के एटम है. एक क्लोरीन का एटम यहां से पिकअप होकर ये हाइड्रोजन के प्लेस को फुलफिल करेगा और हाइड्रोजन को यहां से निकालकर बाहर कर देगा. ओके, इट विल रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मीथेन एंड द स्ट्रक्चर बिकम्स सी, वेट, एंड द स्ट्रक्चर बिकम्स CH3. पहले वो H4 था, अब वो हो गया H3, और एक क्लोरीन के एटम ने इसका स्पेस ले रखा है यहां पर और हाइड्रोजन को निकाल दिया बाहर. तो H3 था और एक क्लोरीन का एटम आके जुड़ गया यहां पर, और प्लस में क्या था? एक Cl वहां पहले से प्रेजेंट था, और जो हाइड्रोजन इसमें से निकला मीथेन में से, दैट गोज देयर एंड HCl इज फॉर्म्ड. ओके, तो अब हमारा यहां बन गया क्लोरोमीथेन. We are getting here chloromethane. Is it clear? Is it clear to all of you? अब हम इस रिएक्शन को और आगे प्रोसीड करेंगे. If we are proceeding this much reaction, substitution reaction in the presence of sunlight, अब क्या होगा? जो क्लोरीन का एटम एक यहां पे तुम्हें दिख रहा है, see here, the chlorine atom you are seeing here. Now again it will displace 1 hydrogen atom from here. Okay, तो अब जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? Yes, अब जो न्यू कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH2. पहले H3 था, see here, तो अब H2 बन गया और एक H और बाहर निकल गया. पहले एक Cl था, अब एक Cl और कंबाइन होता है और ये बन जाता है Cl2, और प्लस में एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, एक हाइड्रोजन निकलकर और जाता है यहां पर, अंडरस्टूड, तो बाहर बच जाता है H2. इज देयर एनी कंफ्यूजन? हमने रिएक्शन को आगे प्रोसीड फॉरवर्ड कराया तो CH2 Cl2 बन गया, 2 क्लोरीन के एटम है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डाइक्लोरोमीथेन. डाइक्लोरोमीथेन. ओके, और H2 गैस हो गया. अंडरस्टूड? इस रिएक्शन को तुम आगे भी लेकर जा सकते हो. अगेन यू विल ऐड क्लोरीन एटम, तो एक H और कम होगा यहां से,
H2 से H बचेगा और Cl3 आएगा। ओके, लास्ट में कंडीशन ऐसा आएगा कि इस कार्बन के 4H निकलकर बाहर चले जाएंगे और उनका प्लेस ऑक्युपाई कर लेगा 4 क्लोरीन के एटम्स। ओके, इट विल बिकम CCl4, इट विल बिकम CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन। एक C है, दैट्स वाई मीथेन, और 4 क्लोरीन के एटम है तो टेट्रा, तो वी विल राइट द नेम एज टेट्रा, मीनिंग 4, क्लोरो 4 क्लोरीन था इसमें, टेट्राक्लोरो, एंड मीथेन फॉर 1 कार्बन एटम। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? ये फाइनल रिजल्ट है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था? लुक एट इट वंस अगेन। हमने स्टार्टिंग में CH4 लिया था, वी हैड टेकन CH4, मिथेन लिया था हमने। ओके, लेकिन हमें मिलता क्या है? हमें फाइनली मिलता है टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, एक एक क्लोरीन के एटम ने स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन के एटम को रिमूव किया और उसके प्लेस को ऑक्युपाई किया। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Chlorine is getting the place for hydrogen atom. Chlorine atom is getting fixed at the place of hydrogen atom one by one, and the methane is being converted into tetrachloromethane. Got it? Yes, all of you have got it. So we have completed, okay, we have completed our today's class. And today you all have to study very carefully. Understood? You all have to study very carefully about the 3 kinds of reaction and what we had studied yesterday about combustion reaction. Okay, combustion, oxidation, addition and substitution. All the 4 types of reaction you must know